How are you? Assalamualaikum, Yashma. How are you? I'm good. I thought there was something wrong from my end, or I was late, but I hope I wasn't, right? Yes, you're good. You're good. You're live. Perfect. तुम्हारी यशमा तुम्हारी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है. Why is that? मुझे आपकी कम आ रही थी, तो मैंने वॉल्यूम अपने साइड से बढ़ाई है, so now I can hear you clearly. And can you hear? I don't know. Okay, chalo. As long as we both can hear each other, and hopefully the people can also hear us. I hope so. Please आप लोग हमें comments में बताएं कि अगर आप लोग को हम दोनों की आवाज ठीक आ रही है. Telling us if they can hear us or not. Yeah, they can tell us. मुझे तो of course मैं खुद चीख रही हूँ, तो मुझे अपनी आवाज बिल्कुल ठीक लग रही है. और मुझे तुम्हारी भी ठीक आ रही है, but थोड़ी सी distant है, but it's pretty okay. But anyways. Is it better now? Yeah, I can hear you now. I can still hear you. I can hear you, but it's just that हमारे followers को सही आवाज आ रही कि नहीं. So yeah, यशमा थोड़ी तुम्हारी आवाज. Are you wearing the earpiece or no? So I'll just hold the camera in my hands now. I'll just hold my phone. I think maybe because I'm putting it on a pillow, so maybe something is happening because of that. हाँ, उसकी वजह से थोड़ी दब जाती है. अब ठीक है? Is it better now? हाँ. It's still low, but I can hear you. But it's just that it is. Yeah, people are saying that your sound isn't clear. It should be fine now. I am like literally putting it on top of my bed now, my phone. Oh my god, I'm so sorry. I'll change your whole location. No, that's completely okay. That's completely okay. Like as far as you guys can hear me, fine. Yep. हाँ, अब थोड़ी बेहतर है. ठीक है. जी. Okay. So how are you? How's your I'm whole good. How are quarantine you? going? I'm good. I'm good. Quarantine is going fine, to be very honest. I'm taking it positively. I'm trying to spend more time with my family, indoors, trying to learn more about a lot of things online. So I'm trying to make the most out of it, but I do understand there are people who are suffering, and I keep telling this to everybody that it's a pandemic and it's a situation that we really right now don't know how to get out of. And it's a virus that is lethal and we don't have the cure for it. But what we do know right now is how to prevent ourselves from it. हमें एहतियात कैसे कर सकते हैं वो हमें पता है, तो हम उस पे अपना फोकस जरूर रखें, हम जरूर केयरफुल हों. मैं अभी भी देख रही हूँ कि काफी लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे. मोस्टली वैसे I would like to appreciate everybody all around my country, in fact the world, कि लोग इतने सीरियस एक्शंस ले रहे हैं, इतना सीरियस है इस बारे में. लेकिन फिर भी उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो अभी भी बाहर गली में जिनके बच्चे भी खेल रहे हैं. आई एम लिविंग इन लाहौर राइट नाउ एंड आई लिव इन अ सोसाइटी, सो आई कीप सीइंग के बाहर ना रोज बच्चे निकलते हैं, टाइम पे खेलते हैं और लोग भी साथ वॉक कर रहे होते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन उन्होंने नहीं की होती, तो मैं उधर से थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि यार यू नो लाइक इट्स फॉर देयर ओन हेल्थ, इट्स फॉर द सेक ऑफ देयर ओन हेल्थ right now that they should be able to take it seriously. तो उनसे बस मेरी दरख्वास्त है कि यार प्लीज, हमें पता है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो हम कम से कम उस चीज को जरूर फॉलो करें. बिल्कुल बिल्कुल, very true. And I think यहाँ पे भी in Karachi also people are walking. That even I go for my walks in the evening, but I keep that distance. It's just my husband and I, we're going walking, but it's not that we're connecting with anyone. But थोड़ा अपना फिर आप distance रख के आप ठंडी, और लोग walk कर रहे हैं, and that's amazing also, because पहले ये नहीं होता था. I'm not too sure about Lahore. In Karachi it never happened. And my question to everybody is कि भाई पहले भी तो यही था, मतलब कि अब आप कर रहे हो, is it the safety, is it the purity, is it the time? I think it's because लोगों के पास टाइम है. और मुझे एक और चीज जो रियलाइज हुई है, मुझे पर्सनली भी हुई है, मेरे काफी सारे दोस्तों से भी मैंने ये बात सुनी है, आई एम श्योर कि जो लोग यहाँ पे कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया होगा, उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि बिकॉज अभी पूरी दुनिया एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, सो हम लोग वो कंपटीशन और वो स्ट्रेस और वो चीजें फील नहीं कर रहे. हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो हेल्थ है इस वक्त सिर्फ. सो हम लोग वर्ल्डली चीजों के बारे में इतना नहीं सोच रहे. हम लोग घरों के अंदर जो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हम लोग अपने दोस्तों से फोन पे जो ज्यादा बातें कर रहे हैं. एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं खुद के बारे में भी जो हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो रियलाइज कर रहे हैं. एंड आई रियलाइज सो मेनी थिंग्स अबाउट माई ओन सेल्फ कि यार मतलब जो मैं वैसे, मुझे मेरी इतनी बिजी जिंदगी में टाइम नहीं मिलता था ब्रेनस्टॉर्म करने का, सोचने का.
So I think we should take this time as a blessing in disguise, if you want to look at it positively, that is. तो चीजें बुरा टाइम भी आराम से गुजर जाएगा, फिर सुकून से गुजर जाएगा. I know. Thank you for this elaborate reply on this. यशमा मुझे ये बताओ, वो एक क्या चीज है, मैंने तुम्हारी वीडियो तो देखी थी IGTV में, जिसमें even I have that pen Quran and it's amazing. Yeah. And so other than that, what is that one thing that you have discovered about yourself? अच्छा, मैंने ये डिस्कवर नहीं किया कि मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर आप बात कर रही हैं, तो मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं किया कि आई एम मोर रिलीजियस नाउ और आई वाज़न्ट बिफोर. मैं पहले भी आई वाज अ प्रैक्टिसिंग मुसलमान एंड स्टिल आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुसलमान. लेकिन मैंने वो वीडियो इसलिए शेयर की थी क्योंकि मुझे पहले डिजिटल कुरान के बारे में नहीं पता था. मेरे पास नॉर्मल एक कुरान था जिसके थ्रू मैं रीड करती थी और उसके नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखी होती थी. सो आई हैड टू लाइक स्पेयर एक्स्ट्रा टाइम कि पहले मैं ऊपर अरबिक में पढ़ूं, फिर मैं नीचे उसका मतलब पढ़ूं, तर्जुमा पढ़ूं. तो वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता था और मैं कम टाइम दे पाती थी. बट बिकॉज आई हैव दिस डिजिटल कुरान विद मी नाउ, सो इट्स इजियर फॉर मी टू लिसन टू इट एंड स्पेंड मोर टाइम विद इट. और मेरे लिए इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं होता. एंड देन अनदर थिंग दैट आई लर्नड ड्यूरिंग दिस टाइम इज, व्हिच आई डिड नॉट नो बिफोर, and tell me if I'm quoting this wrong, but I did my research. YouTube is my source, by the way, guys. तो मुझे पता चला that the angels, all the angels, most of them in fact don't have the privilege of being able to recite the Quran. So when you recite it, they actually surround you and they listen to it. So through you, they're the ones. Through you, they're the ones who are actually enjoying the recitation as well. तो जब मुझे वो चीज पता चली ना, तो वो मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा मोटिवेशनल होगी कि यार, I imagine things. So whenever I am now reading the Quran through that pen, that is, so I imagine the angels surrounding me and like everybody listening to the recitation of the Quran. So this was my discovery. If you're talking about religion, other than that. मुझे ये डिस्कवर हुआ है कि मेरे भाई से मेरी बहुत बनती है, जो मेरी पहले नहीं बनती थी. बट नाउ आई एम गेटिंग टू स्पेंड सो मच टाइम विद हिम. आई एम वेयरिंग हिज टी शर्ट राइट नाउ एंड ही हेट्स मी फॉर इट, बट बिकॉज आई केम टू लाहौर for a shoot and I did not bring much clothes with me because I thought मैं एक दिन के लिए shoot पे जा रही हूँ, and then the flights got cancelled and I got stuck here, so I don't have my clothes. So I am practically living in his clothes. So we're getting along pretty well. That is another discovery. Yeah. That's cute. Yeah. Okay. So तुम लोग मिलके खाना वाला भी पका रहे हो कि नहीं? खाना मम्मा बना रही है. खाना मम्मा बना रही है. अल्लाह का शुक्र है, फॉर्चुनेटली शी वाज हियर. वैसे तो आई एम कराची बेस्ड, आई लिव इन कराची, बट लाहौर में बिकॉज माय मदर हैज हर फैमिली, तो हमने एक घर यहाँ पे भी लिया हुआ था. तो भाई अभी रिसेंटली वापस आया था ऑस्ट्रेलिया से एंड ही वाज लुकिंग फॉर वर्क, तो उसको लाहौर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज थी. सो मामा वाज हियर टू सेटल हिम डाउन एंड मीनवाइल आई केम हियर फॉर अ शूट. एंड वो शूट हो गई, अगले दिन मुझे वापस जाना था बट फ्लाइट्स कैंसिल हो गई. सो एवरीथिंग फेल इन प्लेस इस तरह से कि मतलब वो लोग पहले से यहाँ पे थे, देन दिस हैपेंड. So I was telling my father who's back home, who's in Karachi with my sister, कि अल्लाह का शुक्र है मामा यहाँ पे थी, वरना पता नहीं मैं और भाई क्या करते आपस में और खाना कैसे खाते, कैसे सर्वाइव करते. I swear, like mama, God, it's always they say that God has a bigger and a better plan for us. हम कुछ और सोचते हैं, He has a plan. But I wish I had brought my clothes along. But I'm sure you're looking cool in your brother's clothes also. It's okay. वैसे ही हम लोग घर में यार आधे टाइम PJs नीचे पहने होते हैं, ऊपर के हम टॉप्स चेंज कर लेते हैं. Okay, so यशमा, एक तो ये कि राबिया से saying कि थोड़ा सा अगर कैमरा पीछे कर लो ताकि तुम्हारा हाफ वो कट हो रहा है. If you can just move up a little bit. Yeah. अच्छा, पता है क्योंकि I'm holding it in my hand. I'm holding it in my hand. Oh, can you listen? Can I tell you कि तुम्हारी आवाज में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. So तुम बेशक रख दो. अच्छा, okay, then let me just put it back where it was so you guys. Because तुम्हारी आवाज में from the one that you kept it and to now इतना फर्क बिल्कुल मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. दिखाओ, अब बात करो. Okay. अब आवाज आ रही है. ये अब आवाज ठीक हुई थी. Whatever you did, किच उसमें आवाज ठीक हुई थी. हाँ. Okay. Is it okay? Perfect. Yes. I am getting to see a lot of comments that people are saying at least हमें भी reply कर दे. So do you mind if I go through the comments? Yes. Okay. I was even going forward to pick up the comments. Can you start reading? Okay, wait. Perfect. So Asfia Koster is like, hi Yashma, I am your biggest fan from India. Thank you so much. All the love back to you. Acha.
एंड देन देयर इज जी, हमें भी ले कॉल पे अब्रार. आई डोंट थिंक 3 लोग एक साथ आ सकते हैं. I love you. You look like my small sister. Thank you, Anas. Do send me a picture of your small sister, that is, if you can, and I will see the resemblance. अच्छा, ड्रामा तो बहुत अच्छा है प्यार के सबके. थैंक यू अब्दुल राफे. आपका नाम अब्दुल्ला से कितना क्लोज है. I love you. I think Mariam, this is for you. I love you, Mariam. Marry me. यशमा, हाँ ठीक है. राबिया, मैंने अपना कैमरा बिल्कुल ऊपर कर लिया है. एंड यशमा, माई लव प्रिंसेस जोकियो. थैंक यू यार. आप सिंधी है मेरे ख्याल से, है ना. मां भी तो सा डारू घनो प्यार कंदी आया. जोकियोज आर सिंधीज आई थिंक. अच्छा, अनस कह रहे हैं यू कैन लर्न कुरान फ्रॉम मी. अनस, आप क्यों नहीं अपनी प्रोफाइल को, आई थिंक क्वारंटीन में अभी सब लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम जो है वो ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं. आप अपनी प्रोफाइल, मुझे नहीं पता इफ यू हैव अ public account or not, but if you don't, maybe make it public and you can start giving Quran classes on, you know, online through your story. Yeah, there's so many other ways that you can figure out. जिस तरह वो सरबत कर रही हैं आजकल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो जो पेंटिंग सिखा रही हैं. और yeah, even I think Amna Sheikh is doing Urdu reading. Storytelling. I heard Sheikh, somebody's doing storytelling and someone is doing artwork. So I art, thought, and if I'm not wrong, I saw Jaleka, she's doing some cooking. So everybody's doing something. हाँ. Yashma, I love you. Mind sense and Shanze character. I love your talking style. Hi, thank you. हालांकि कितने सारे लोगों ने उसमें बोला कि यार ये इतना accent मार के शानजे क्यों बात करी है. And I'm like, guys, that was my character. You know, I'm a spoiled, अंग्रेज लड़की from like this university who's a freaking diva and who's a poo. So I have to have that accent. तो ये सीन है जी. Okay. Okay, so we've done all the questions. Yes, we have. I think so far. Yashma aesthetics. Yeah, okay. I love. जब तक और questions आ रहे हैं, okay, Yashma, I'm going to talk to you and ask you about, firstly, to go back and मुझे ये बताओ कि how did you start your career? How did you get into this? Acha, it's a very complicated story actually. I'm sure a lot of people already know about it because I've talked about it a lot. But to summarize it, to sum it up, I used to be a VJ. I was a VJ when I was around 15 years old. और मैंने बहुत कम टाइम के लिए VJing की थी, कुछ 3 months के लिए. उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई, ना कोई एक्टिंग परस्यू की, ना VJing, क्योंकि पढ़ना था और फैमिली भी थोड़ी सी इस चीज के अगेंस्ट थी. Then when fast forward, I did my O-levels, A-levels, bachelor's from Australia. I came back. By the time I came back, the friends that I had made during my VJing career time, वो सब अब एक्टिंग में चले गए थे. कुछ प्रोड्यूसर्स बन गए थे, कुछ एक्टर्स बन गए थे, कुछ डायरेक्टर्स बन गए थे. So I started getting the offers, and because I wanted to be an actress, so I tried convincing my parents. I took start from a telefilm, क्योंकि वो छोटी चीज होती है, कम दिनों की होती है, उसकी परमिशन भी मिल जाती है, आप खुद भी देख लेते हो कि if you can do a 10 to 10 thing or not, and if it's something that if you can act. तो मैंने वो किया and it worked out pretty well for me. It just started from there. Just started to work. Okay. So मुझे ये बताओ कि how was your experience with working with Hamza Ali Abbasi? अलिफ के बारे में कुछ बात. हमजा के बारे में मैंने सुना बहुत था कि हमजा बहुत अच्छे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, अलिफ शूट हुआ था कुछ 2 साल पहले और मुझे टोटल 3 साल हुए हैं अभी इंडस्ट्री में. सो आई वाज स्टिल वेरी न्यू, राइट, एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ हमजा अलीज अब्बासी स्टारडम और फिर सज्जल और कुबरा. तो मैं बहुत डरी भी थी और मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हमजा के साथ ही था क्योंकि मेरे ज्यादा सीन्स हमजा के साथ थे. तो जब मैं सेट पे जा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज रियली नर्वस एंड आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आई किड यू नॉट, मेरे शायद फिर भी कोई नखरे होंगे सेट पे, हमजा के कोई भी नहीं थे. वो किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लेंगे जमीन पे, और he was so supportive. He will compliment you after every scene कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. सदफ ने, आई थिंक सदफ कवल भी थी उसके अंदर, तो सदफ ने पहले सिर्फ फिल्म की भी थी और उनका बड़ा स्टार्ट था एक्टिंग में, तो वो भी बहुत नर्वस थी कि यार मैं पहली दफा इतने लंबे लंबे सीन्स कर रही हूँ, उसको भी बार बार कॉम्प्लीमेंट करना, मुझे आके बताना सदफ ने इतना अच्छा सीन किया है. तो हमारा कॉन्फिडेंस अगर यहाँ था ना, तो हमजा ने यहाँ कर दिया. और he's a great co-actor to work with, and more than that, he's a great human being. Yeah, wow, that's good. अच्छा यशमा, इससे पहले कि मैं अपना दूसरा क्वेश्चन तुमसे करूं, तो तुम प्लीज गो बैक ऑन योर फैंस एंड कुछ कह रही हैं, प्लीज मेरा नाम लें, दिस मिराल नूर
is saying again and again, please मेरा नाम लें. Miral, I love you. Fatma 3892, hi, how are you? बहुत ज्यादा उन्होंने मैसेज किए में हैं. मिराल नूर, मिराल नूर मुझे लग रही है कोई छोटी लग रही है ना? मिराल कैसी हैं आप? कैसा जा रहा है टाइम क्वारंटीन में? स्कूल नहीं जा रही होंगी? अच्छा, आई लव यू, मैरी मी अस्मा. यार इसका मैं क्या जवाब दूं? Thank you so much for all the love. I appreciate it. And I love your character Shanze. Hi, thank you Miral. Please आप लोग देखें ड्रामा, अभी तो आगे जाके बहुत मजे का होना है. अच्छा जी, समरन कैसी हैं आप? Is Samran I think Samran's from India, no? Okay. How are you? Please say my name. Iman मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी है. Queen 123287. If you follow me आपको पता होगा. और यशमा एस्थेटिक्स मेरी बहुत प्यारी फैन है, and I love her. She's always there for me to support me in everything. I love you. Okay, this one is saying diet plan share करें अपना और beauty secrets बताएं. That's also part of my questions, but you can tell them now. Okay. और please यशमा थोड़ा सा जरा जितना भी उर्दू में रख लो ज़्यादा बेहतर होगा. अच्छा ठीक है perfect. हम सबको even I myself need those reminders. उर्दू में बात करो, I keep forgetting. I know. Okay. ठीक है, सही है. Okay. So you are so crazy girl. I love you. Thank you खतीजा. अच्छा मेरा डाइट प्लान ये है कि वैसे आजकल तो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी रूटीन बहुत खराब हुई हुई है. एंड सेकेंडली मुझे कुछ 6 महीने पहले जिम में 5 महीने पहले जिम में नी इंजरी हो गई थी. सो उसके बाद से मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं उसको हील कर रही हूँ और मैं सब कुछ खा रही हूँ. लेकिन जो मैं पहले फॉलो कर रही थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. बट कीप इन माइंड कि वो मेरा प्लान था विथ माई वर्कआउट रूटीन एज वेल. सो आई डोंट नो कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं. बट एक जो जनरल बात है वो ये है कि आपका जो भी बॉडी वेट होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू 60 kgs, तो आप उससे डबल प्रोटीन इनटेक अगर करो, मतलब 120 ग्राम का अगर आप प्रोटीन इनटेक कर लो तो आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प होता है. और जितना मसल आपकी बॉडी में होगा उतना आपकी फैट रिडक्शन की तरफ आपकी बॉडी जाएगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर 3 घंटे खाओ. 3 घंटे के भी मतलब अगर अभी एक मील ले ली है तो उसके बाद 3 घंटे तक कुछ ना खाओ, सिर्फ पानी पियो और अपने मुंह को जिप लगा लो. लेकिन हर 3 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा जरूर खा लो, बिकॉज दैट कीप्स योर मेटाबॉलिज्म गोइंग. वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है. हाँ, और फिर उससे ज्यादा आपका वेट रिडक्शन की तरफ जो है सिस्टम जाता है. दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग जिम जाते हैं तो आप लोगों को 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जिम का कोई फायदा नहीं. 6 आवर्स मिनिमम, 8 आवर्स तो करें ही करें. 6 चलो अगर नहीं हो रहा 8 to 6 कर ले, वरना आपकी मसल रिकवरी अगर नहीं हो रही तो मसल ग्रोथ की जगह मसल रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं हो रहा जिम जाने का. और अब डाइट की तरफ आ जाऊं तो मेरी डाइट ये थी कि सुबह उठ के 9 बजे मैं उठती हूँ शूट्स के दिनों पे, तो मैं 3 या तो व्हाइट एग खा लेती हूँ, उसमें से 1 की योक खा लूंगी, या फिर मैं 3 पोच्ड एग्स खा लेती हूँ जिसमें से मैं सिर्फ 1 की योक खाऊंगी, विथ ब्राउन ब्रेड टोस्टेड, उसके साथ एक ग्रीन टी. उसके बाद शूट पे जाके मैं एक एप्पल खा लूंगी 3 घंटे बाद, या मैं कोई भी फ्रूट, बनाना खा लूंगी, 2 खा लूंगी, बनानास में 2 खाती हूँ, खाओ, या एप्पल खा लूंगी. देन लंच में मैं चिकन टिक्का मंगवा लूंगी, बट ब्रेस्ट पीस, बिकॉज ब्रेस्ट के अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है और कम फैट होता है. एंड उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा सैलेड्स के साथ मिक्स कर लूंगी. अगर बहुत ज्यादा रोटी की क्रेविंग हो रही है तो 1-2 बाइट्स ले लूंगी ताकि मेरे टेस्ट बड्स को थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए और मेरी क्रेविंग कंप्लीट हो जाए. लेकिन मैं पूरी रोटी नहीं खाऊंगी. उसके फिर 3 घंटे बाद जो है मैं अभी तो सर्दियां जब चल रही थी तो मैं मूंगफली खा लेती थी, कोई नट्स खा लूंगी, या योगर्ट ले लूंगी, या नेस्विटा का वो छोटा दूध का पैकेट आता है वो पी लूंगी, कि थोड़ा सा प्रोटीन भी आए, थोड़ा सा कैल्शियम भी आए, दैट. एंड देन उसके बाद जो है अगर मुझे जिम जाना है उस दिन तो मैं प्रोटीन शेक पी लूंगी जिम से पहले. ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं जिम से पहले पी के चले जाती हूँ, सो आई फील अ लिटिल फुल एंड थोड़ा एनर्जेटिक. आई गो टू द जिम एंड देन जिम के बाद मैं या तो स्टीम फिश ले लेती हूँ या स्टीम चिकन ले लेती हूँ. सैमन इज माई फेवरेट बिकॉज इट टेस्ट गुड एज वेल और प्रोटीन में भी बहुत हाई होती है. उसके बाद मैं ये कोशिश करती हूँ मैं सैमन के साथ फॉर माई कार्ब्स आई टेक कॉर्न को मैं स्टीम कर लेती हूँ. आप कॉर्न ले सकते हो कार्ब के साथ. मैं उसके अंदर ब्रोकली डाल लेती हूँ, कैरेट्स जो है उनको स्टीम कर लेती हूँ, तो वो मुझे कार्ब्स के तौर पे फुल कर देती हैं. एंड अगर मुझे रात को, वैसे तो आई ट्राई कि मैं सोने से 3 घंटे पहले तक कुछ ना खाऊं, बट अगर बहुत भूख लग रही है तो एक बहुत लाइट सा मील आप बना सकते हो. आप नो फैट योगर्ट के अंदर
म्यूसली डाल लो और थोड़ा सा क्रैन वो आते हैं फ्रोजन बेरीज आती हैं वो डाल लें ऊपर, आप हल्का सा हनी डाल लें. इट टेस्ट्स रियली गुड आल्सो एंड इट फिल्स यू अप एज वेल. दैट इज माय वाओ, ओ वाओ, सो ग्रेट. आपने तो थोड़ी थोड़ी हमें उसकी रेसिपीज भी बता दी, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स और डाइट. उसकी न्यूट्रिशनल या फैक्ट्स भी बता दिए. वेरी गुड, थैंक यू यशमा, थैंक यू. ओके, और ब्यूटी का मुझे अब पहली बात मुझे अपना बताओ कि व्हाट्स योर पर्सनल स्टाइल लाइक, बिकॉज आई माय हैव सीन पर्सनल यू ऑन स्टाइल. दैट कैजुअल या स्लीक यू गर्ल. यू गॉट इट राइट. मैं शूट पे कैरेक्टर के लिए तो मैं बहुत तैयार हो जाती हूँ. मैं कैरेक्टर के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, आई मेक श्योर कि मैं उसको 100% फॉलो करूँ. लेकिन अदरवाइज इन माई नॉर्मल लाइफ आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन. मैं, आप मुझे हमेशा देखोगे या तो नाइट सूट में या जिम के कपड़ों में या मेरे भाई के कपड़ों में. और मेरा जो मेकअप है दैट इज, मैं एक लिप टिंट यूज कर लेती हूँ. मैं उसको लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, आप मेरी फिंगर पे देख सकते होंगे उसको. उसको मैं चीक्स पे भी लगा लेती हूँ, आंखों के ऊपर भी लगा लेती हूँ. या एंड दैट इज माय everyday look. That is my everyday makeup look. Yeah, okay. So who's your favorite designer, and who's your favorite like for makeup artist? कौन है तुम्हारा? Do you have one in particular or you? यार बहुत सारे में से तो मेरे ख्याल से हर कोई अपनी जगह बहुत टैलेंटेड है. लेकिन ड्रामाज में मेरे ख्याल से मैं जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ दैट इज किडी पॉल. ही इज वेरी 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 नाइस. मुबशिर भट्टी जिन्होंने हमें अलिफ के लिए तैयार किया था वो बहुत अच्छे हैं. बाबर जहीर ने कभी मुझे तैयार नहीं किया लेकिन मैंने बाबर का वैसे काम देखा है एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड. तो आई थिंक यार वो क्या काम करते हैं. और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. वो इतने मजे के हैं और वो इतने अच्छे हैं कि मैं Yeah, yes. यार सच अ Yeah. गुड न्यूज. तो बाबर मुझे पसंद है. एंड या मतलब बहुत सभी सही है लेकिन ये कुछ नाम है जो मुझे याद है और जो मुझे लगता है कि इनके For, साथ अच्छा for काम कर. makeup and for wardrobe, who do you prefer? Do you have any preference? वार्डरोब के लिए हमारे ड्रामास के कपड़े तो जो है वो एक अली डिजाइनर है, वो बनाते हैं, अली शहजाद. आई थिंक ही इज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एक्टर और जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बाकी यार मैं किसी एक का नाम कैसे लूं. हर इवेंट पे कोई ना कोई मुझे लग रहा नहीं, होता है but कोई कि होता है ना जो तुम्हारा personal favorite है, and other than event and other than drama, I'm talking about कि which one you would go for always to कि भी इनके पास मेरे मुझे पास बीट्स मेरे का लिए स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. आई रियली sorry. लाइक बीट्स का स्टाइल बहुत अच्छा है. Okay, okay, all It's right. very trendy, casual, Trendy. come. YBQ बहुत अच्छे हैं. YBQ is also very minimal. I'm a very minimal person, so I Yeah, like जो बड़ी minimal चीजें होती है. But वो event पे depend करता है ना. Everybody is yeah. really good. How is it? YBQ तुमने बोला है तो मुझे ख्याल आया कि how was it at the studio? You guys, तुम लोगों का जो Alif का जो office बना हुआ है, that's YBQ studio, yeah, if I'm Yeah, not wrong. yeah. So how was that interaction with him and being over there and I the don't know if whole you've ever met. I don't know if atmosphere? you've ever met YBQ sir, but he's so inspiring. He is so deep. और वो पता है एक दफा तो मेरे साथ ऐसा हुआ था. मैं बीच में for 8 months I wasn't working. I had left the field because of a few reasons. तो उसके बाद मैं बीच में बस एक कोई मुझे शो था निदा भाभी का, निदा यासिर का, तो उसके लिए I had to go to YBQ for my clothes. और मैं कोई 4-5 महीने बाद लाहौर से निकली थी and I was in a state of मैं इतने I was like really depressed and down. उस दिन मेरे साथ कुछ हुआ भी था. And I wasn't feeling like going to the show also because I was like यार इतनी low energy हो रही है मेरी. But as soon as I entered his room, वो जो उनका एक कमरा है जहाँ पे वो बैठे होते हैं नीचे, I don't know if you हाँ if you've been to Yes, them, yes. you must know. Yeah, मुझे I've उस been room there. में I don't know if you believe in vibes and energies or not, but I think because he's such a positive person and because he's so Yeah. full of knowledge and positivity कि उनका ऑरा जो है ना वो बहुत हैप्पी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सूदिंग है. तो जैसे मैं उनका कमरा एंटर हुई ना, मुझे इतना एक अजीब सा सुकून सा मिला. एंड देन ही ऑफर्ड मी दिस ड्रिंक, वो जो कोई जूस बनवाते हैं, वो पता नहीं किस चीज का, I know बादाम it's का a और fruit किसका. punch. Yeah, या it's very इट्स अ nice. I've फ्रूट also पंच had और एंड बादाम भी बीच में होते हैं. सो वो मुझे उन्होंने पिलाया और उसके बाद कोई हमने 1.5 घंटा ना सिर्फ जिंदगी पे बात की है. और आप यकीन करें कि इतना सीखा मैंने उनसे उस 1.5 घंटे में. उन्होंने मुझे पोएट्री भी अपनी सुनाई, चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्पिरिचुअल थेरेपी मुझे दी. एंड आई वाज लाइक मैन, मतलब यू नो सो मच. ही इज Yeah. जस्ट he's not an ordinary person.
Like That's he's all an, I can I say. think, institution on its own in himself. Yes, yes, for Totally, he sure. inspires us all. Yes, yeah, yeah. Okay, I think अब फिर से तुम्हारे कुछ questions आए हैं, हम फिर एक लेंगे. Okay, everybody is saying कि एक गाना कोई गा देंगे. ये मिराली है बार-बार जो कह रही है गाना गा दें. यार आई कांट कोई सिंग टू सेव माई लाइफ. मैं इतनी बुरी सिंगर हूँ. मैंने अभी बीच में वो एक रैप निकाला था जस्ट टू गिव आउट अ मैसेज टू द वर्ल्ड. आई हैड नो इंटेंशन yes, टू कम आउट एज अ, मतलब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं एक सिंगर दिखूं या मैं सिंगर बनूं. आई जस्ट वांटेड टू यूटिलाइज माई टाइम, बी प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम एंड गिव अ मैसेज ऑल्सो उसी चीज के अंदर. तो मेरा बस वो इंटेंशन था. गाना तो मैं बहुत, लेकिन अगर आप मुझे कोई बता दें गाना नीचे तो मैं गा के सुना देती हूँ. बस आप बर्दाश्त कर लीजिएगा. yeah, I think वो यही कह रहे हैं कि hello from India again. Hello from India. There's another. Or somebody is asking. Kaju is asking. India कभी गए हो? Have you been to India? यार नहीं. I really want to go and I wanted to go really badly at one point of time in my life. मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडिया से है. वो मेरी दोस्त इस तरह बनी when I was studying abroad. तो वहां पे मेरी दोस्त बनी, लेकिन उसकी शादी थी. Okay, I think we have. And people are sending some songs also. I'm really sorry. I think we both stuck or it's just one? Stuck. Okay. So I'm going to take Yashma back in. Yashma, please अगर आप दोबारा से हमें add कर लें. And so sorry. Okay, yeah, I know. I think I'm not stuck. Am I still stuck also? मैं तो stuck नहीं हूँ ना. Please मुझे बता दें कि मैं भी stuck हूँ क्या. I'm just waiting for Yashma to join in again. और अगर मैं भी stuck हो गई हूँ तो please मुझे बता दें. Okay, thanks Shazia. So I'm just gonna wait for Yashma to get back in. बहुत मजे की हम बातें कर रहे हैं. Yashma से अब हम बातें करेंगे about her TikTok. How is being a TikTok star and how is it? तो अगर आपके पास कोई TikTok के questions हैं तो आप please इसमें बताइएगा so that Yashma हमें reply करें. I'm just waiting for. Thank you very much Rabia Bhuvni for saying red is looking very nice. Thank you Shazia. So okay, let me see. अगर यशमा ने मुझे, I'm not too sure. I hope कि उसका Wi-Fi ठीक हो. Because उसने मुझे दोबारा से request नहीं भेजी है. So Rabia and Shazia, if you guys are online, please can you check if she is coming back online. ताकि हम उनसे और थोड़ी सी बातें करें. कुछ अभी हमने प्यार के सदके के बारे में बातें नहीं की थी. And हमने टिकटॉक के बारे में बातें नहीं की. सो ये दो बातें हैं जो अभी मेरी लिस्ट पे हैं. बाकी आप लोगों के साथ भी क्वेश्चंस, यस इंशाल्लाह हम ज़ारा नूर अब्बास के साथ भी करेंगे. सिंगल सॉन्ग मैं करूँ राबिया, मतलब कि तुम मुझे कह रही हो सॉन्ग गाने के लिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यशमा कि वापस आए. जब तक यशमा नहीं वापस ऑनलाइन आती, मे बी उनका कुछ वाईफाई का चक्कर होगा. मे बी शी इज फिक्सिंग इट. तो आप लोगों ने अगर मुझसे कोई सवाल करना है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं. हम लोग कोई गेम खेल सकते हैं, हम लोग ऐसे बातें कर सकते हैं. अदरवाइज विल रैप इट अप ओवर हियर. वी विल वेट फॉर यशमा फॉर अनदर 5 minutes एंड फिर देखते हैं. जी हमने मैसेज किया है. आई एम जस्ट चेकिंग विद Yashma again कि I hope she is coming online. Yashma अगर आप please online हैं, हम सब आपके लिए वेट कर रहे हैं. And let's see. Hello. Hi. मैंने आपको मैसेज किया. हाँ जी मैं वेट कर रही हूँ उनके मैसेज का. राबिया या शाजिया जो ऑनलाइन हैं वो
उनसे चेक कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम होपफुली यशमा विल कम बैक ऑनलाइन। लेट्स वेट, लेट्स प्रे कि वो वापस आ जाएं। अगर उनका कोई टेक्निकल इशू कभी कभार हो जाता है, हमारा भी आजकल तो वाईफाई का बहुत चक्कर चल रहा होगा। आप लोग बताएं, आप लोग के घरों में वाईफाई का चक्कर है? अगर बहुत सारी चीजें अपलोड हो रही हैं, बहुत सारे लोग एक वक्त पे नेटफ्लिक्स पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो फिर वाईफाई डाउनलोड हो जाता है। सो तब तक मैं आपसे बातें करूंगी। आज आपने घर पे क्या पकाया? या आप लोगों ने हमारा नया फेस मास्क ट्राई किया, जिसकी अभी रिसेंटली हमने वीडियो डाली है? उसको हमने स्क्रब बनाया था चावल के साथ। उसमें दही था, चावल था और ग्लिसरीन थी एंड नींबू था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज IGTV पे जाके आप चेक कर लीजिएगा कि वो कैसे स्क्रब बनता है। उसको मैंने प्रॉपर स्क्रब किया था। थोड़ी सी मेरी अगर शक्ल में थोड़ी शाइन आ रही है तो शायद उसी की वजह से है, बिकॉज और तो कुछ हो नहीं रहा। So I don't think Yashma is and Rabia से कहें आपको ज्वाइन कर ले। हाँ, वैसे बहुत ही अच्छा आइडिया है राबिया। आप मुझे ज्वाइन कर ले, बिकॉज अगर यशमा जब तक नहीं आती हैं सो हम राबिया को ले सकते हैं या हम किसी एक कॉलर को ले सकते हैं। लेट मी जस्ट सी, आई एम नॉट टू श्योर। मैं मैसेज में चेक कर रही हूँ अगर यशमा का कुछ मैसेज आया है कि नहीं। एंड ओह, हेयर ऑयल, हाँ मैंने ऑयलिंग भी की है, बिल्कुल। मैंने उसको बताना है आप लोगों को। मैंने हेयर फॉल के लिए एक ऑयल बनाया था जो मुझे सदफ फाइबिलाजो ने बताया था, जिसमें अनियन का वाटर है, एलोवेरा है एंड कोकोनट ऑयल है। सो सून वॉच आउट फॉर माय इंस्टा स्टोरीज ऑन दैट। मैंने उसको कल बनाया भी है और लगाया भी है। एक दिन तो बाल नहीं आए बट आ जाएंगे, बट मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस सारा नूर। अगर आप रेडी हो तो मैं आपको ऑनलाइन ले रही हूँ अंटिल यशमा इज कमिंग, ठीक है? जैसे यशमा आएगी फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। ओके, आई एम टेकिंग सारा नूर फॉर जस्ट अ मिनट, 2 minutes। आई हैव नेवर डन दैट। हमने पहले भी करना था। आई डोंट नो। ओके, सो सारा आप अगर ऑनलाइन हो तो मैं आपको ले लेती हूँ। सेकंड रिक्वेस्ट मैं चेक कर लेती हूँ किसकी थी। नो, वी आर इन पाकिस्तान। सिंह बलबीर, हम पाकिस्तान कराची में हूँ मैं। Okay, thanks Rabia. Until this I will let, oh wait, I think I have Yashma. Okay, I have Yashma online. Sorry. Okay, I think Yashma is coming back online. Or Yash, there you are. What happened? मैं यही कहने लगी थी अब तुम 3G कर दो, बट अभी भी तुम्हारा राउंड एंड राउंड। या अभी भी बीच बीच में थोड़ा क्रैक हो रहा है। तुम्हारी थोड़ी सी फेस इज डिस्टॉर्टेड बट इट्स ओके। बट सही है, आवाज मुझे आ रही है। I hope everybody else can also hear. Oh, they're saying no voice. Oh, people can't hear you, Yashma. Fine now? थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है बट मुझे आवाज आ रही है। बट आई नीड टू लिसन फ्रॉम हियर फ्रॉम अदर्स। अगर तुम्हारी आवाज आ रही है, oh, they can't hear you. They can't. Okay, अब बोलो कुछ। I think थोड़ा no. हमें तुम्हारी आवाज ठीक तरीके से आ रही है। Oh, she's gone again. She's gone again. हमें उसकी आवाज नहीं आ रही है। Actually, I could hear her, but बहुत distorted था। Yashma, we're really sorry.
अगर आप अपना वो वाईफाई फिक्स कर लें तो हम विल वेट फॉर अनदर 5-10 minutes. तब तक आई विल जस्ट टेक अ कॉलर इन and wait for Yashma again to join in. I hope उसका वाईफाई ठीक हो जाए, यही बस हो जाता है. जो क्वेश्चंस नहीं किए गए हमसे, आप लोगों ने जो उससे पूछे थे यशमा से, जो नहीं आंसर हुए हैं, उसको हम लोग आई विल सेंड इट टू यशमा एंड शी कैन रिप्लाई. उसको रिप्लाई करके वो वॉइस नोट पे या उस पे लिख के भिजवा देंगी ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग रिप्लाई करवा दें. आई एम गोइंग टू, yeah, the Wi-Fi is a little bit bad these days, जो थोड़ी सी इशू है, but let me just see अगर वो हो जाता है. So सारा नूर, अगर आप ऑनलाइन हो और अगर यशमा नहीं आ रही है, so I will try taking you again. And if Yashma is there, please Yashma मुझे दोबारा से भेज दो. ओके सारा नूर, आपका तो नहीं हो रहा. ओके Rimsha, can I get, okay, I've got Yashma again. I'm gonna try Yashma again. एक दफा और ट्राई करते हैं. Okay, so I have Hello fixed it now. again. I put it कहीं और, मैंने अब कहीं अब और क्या जाके किया लगा तुमने? दी डिवाइस, वहां पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है. अब hopefully मुझे ठीक आवाज आ रही है. Okay Yashma, let's quickly get back on. You were telling them about India, about that you've never been to India. So I have my, yeah, so I have my best friend from India और उसकी शादी थी and I really wanted to go, but as you all know, unfortunately जो हालात हैं, एक तो उस वजह से भी नहीं जा सकते. फिर आपके घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं अगर आप बोलो कि पाकिस्तान से इंडिया जाना है या इंडिया से पाकिस्तान आना है, कुछ भी इस तरह का, पता नहीं क्यों. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई रिमेम्बर कि जिस दिन उसकी शादी थी, दिस इज सो क्रेजी, लेकिन मुझे ख्वाब आया और मुझे पता था कि उसकी ना शादी के मतलब 3-4 फंक्शन है, बट आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि रुखसती किस दिन है. तो जिस दिन उसकी रुखसती थी ना, उसी दिन रात को आई वाज स्लीपिंग एंड आई हैड अ ड्रीम कि मैं जो हूँ, मेरे ख्वाब किताबी हज़रत यूसुफ रज़ियल्लाहु पे, बट मुझे ख्वाब आया कि आई एम लाइक इन अ स्लीपिंग स्टेट और मेरे घर के बाहर ना कोई फायरवर्क्स हो रहे हैं. एंड देन व्हेन आई गो, तो मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ी वॉल है जो बहुत बड़ी है, एंड देन आई हैव टू लाइक गो अक्रॉस दैट वॉल टू सी के फायरवर्क्स किस चीज के हो रहे हैं. तो मैं ना एक रास्ता ढूंढती हूँ, विच इज लाइक अ टनल, वो जो अंडरग्राउंड सुरंगें होती है ना, और मैं वहां से इंडिया पहुंच गई हूँ और मैं उसकी शादी वादी अटेंड करके वापस आ गई हूँ. सो आई कॉल्ड हर द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक, डूड, आई हैड दिस ड्रीम अबाउट यू. एंड शी इज लाइक, व्हाट द हेल, बिकॉज़ मेरी रुखसती रात को ही थी, तो मैं आज ही ख्वाब आना था. So that was my connection with her maybe. तो ये मेरा इंडिया जाने का ख्वाब में मैं इंडिया गई हूँ, वैसे नहीं गई. That's a good one. ख्वाब में इंडिया गई है, वैसे नहीं गई है. Okay. अच्छा, अब हमने इससे पहले कि हमारा फिर से बंद हो जाए यशमा, okay. So tell me something about TikTok. How is it being at TikTok? How is it? What's the whole experience like? Yeah, to be very honest, I am not the right person to ask this question because मैं खुद TikTok पे नहीं हूँ और मैं किसी ऐसी जो TikTok पे नहीं है, तो मुझे बिल्कुल TikTok का आइडिया नहीं है कि TikTok पे क्या हो रहा है और क्या नहीं. But I have been reading a lot about it, and I have been reading things like our generation is going in a very wrong direction because of TikTok और इस तरह की चीजें. लेकिन क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज को, तो मैं कोई बात नहीं कर सकती इस बारे में. अच्छा, ओके. So you've never done TikTok, या तुम्हें शौक नहीं है, या कभी कभार ऐसी? Never. Yeah, I think I'm really bad with हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, और मुझे लगता है कि टिकटॉक यूज करने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी को आपको मास्टर करना पड़ता है, तो मैंने कभी उस जगह पे जाने का ट्राई नहीं किया. अच्छा, टेल मी, फेसबुक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम, एनी टाइम. ओके. डार्क लिप्स और न्यूड? यार, dark lips don't, nude lips don't suit me, so dark lips on myself, but on other people I would prefer nude lips. Okay. So are you a kajal person or eyeliner person? Eyeliner person.
Eyeliner. Okay, so do you like wearing color or you're all black and white? I have my days. Mostly I'm black and white, but I think I look better in colors. Yeah. Long hair or short? I've always had long hair and I've always had a thing for long hair, but recently I've cut my hair short. So these days it's short hair. ये short नहीं है. Short फिर यार, ये होता है बिल्कुल. मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट है. मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट है. मेरे इतने लंबे बाल थे. अच्छा हाँ, मुझसे तो शॉर्ट ही है वैसे. Come to think of it, yeah, ऐसे ही है. Yeah. Okay, so do you like अभी आजकल जो रूटीन है थोड़ी क्वारंटीन की, मुझे बताओ. Do you oil your hair most? Do you do a face की scrubbing या कोई mask ऐसी चीजें करती हो, or you just laying down and just having a chill time? I think I'm sleeping a lot. To be very honest, I am probably catching up on my sleep, जो एक्टिंग रूटीन में बहुत कम होती थी. मैं सोचती रोज हूँ कि मैं कोई फेस मास्क बनाऊंगी और लगाऊंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाती. मैं आई डोंट थिंक मैं ब्यूटी रूटीन कोई भी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि मेरे बाल रोज आयरन नहीं हो रहे और रोज कर्ल नहीं हो रहे, उनको रोज हीट नहीं जा रही. तो वो इन इटसेल्फ मुझे लग रहा है कि उनके लिए बहुत एक जो है अच्छा टाइम है. एक बहुत अच्छी थेरेपी है. Totally, yeah. Actually, it's true. सबके वो ही हो रहा है कि skins breathe कर रही हैं, बाल सही हो रहे हैं, because उनको ज़्यादा heat treatment नहीं मिल रही है and all that. Okay, so all right. So let's talk about प्यार के सदके. ठीक है, प्यार के सदके का तुम मुझे कोई इंसिडेंट बताओ कि बिलाल के साथ कुछ any funny nice incident on set. या बिलाल के साथ कभी कुछ फनी वैसे he takes his work very seriously, which I love about him. तो कुछ ऐसा I can't remember, लेकिन हमारे डायरेक्टर बहुत फनी थे, दादा फारूक रैन. वो हमें हमेशा हंसाते रहते थे. उनसे कोई एक बात करो तो दादा के पास इतनी लंबी कहानी होती है बताने के लिए, उस बात को इलैबोरेट करने के लिए और अपने पास्ट से कोई कहानी कनेक्ट करने के लिए. सो वो एक बहुत फन एक्सपीरियंस था मेरे लिए. एंड आई थिंक फनी चीजें ये थी कि हमारे लिए जो एक फनी कोइंसिडेंस था मेरे और बिलाल के लिए, वो ये था कि जो हमने पहला ड्रामा साथ किया था इससे पहले, वो कुर्बान था, जिसमें आई वाज हेड ओवर हील्स फॉर हिम एंड ही वाज इन लव विद इकरा. और मतलब मैं बिल्कुल, मेरी बेलॉस टाइप मोहब्बत थी उसके लिए. उसको मतलब मैं आई वाज लाइक आफ्टर हिम, लेकिन देन आई वांटेड हिम टू बी विद. सो इस ड्रामे में आई एम द ऑपोजिट ऑफ दैट. ही इज आफ्टर मी and I am like not giving a shit about him, right? Opposite, तो वो चीज ना एक बहुत फनी थी मेरे लिए. मैं रोज बिलाल को बोलती थी कि बिलाल, मरियम बदला ले रही है शान से बन के, मरियम शान से बन के बदला ले रही है. So that was like a funny thing that we would say on the set. Otherwise कुछ ऐसा कोई funny experience नहीं हुआ, मतलब कि मैं बोलूं कि oh like I remember, or maybe I just can't think about it right now. I don't think so. Because प्यार के सदके में यमुना और उसके जो इतने मजे के उनकी केमिस्ट्री है, they're sweet and cute dialogues. When you interacted with them, और जब तुम उनके साथ हो, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें तुम लोग बहुत क्रैक डाउन किए हो किसी एक डायलॉग पे, किसी एक उस पे, कि यू लाइक यार ये नहीं हो रहा हमसे. There was this one moment जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्रैक डाउन तो नहीं किया, लेकिन वो ये हुआ कि मेरी और आई कांट टेल कि सीन क्या था क्योंकि वो अभी आगे आना है, बट एक सीन है जिसमें बेसिकली मैं और बिलाल बैठे हुए हैं और हमारे पीछे ना, हमारे बैक पे कोई 10 लोग खड़े हुए हैं, मतलब 10 खानदान के लोग खड़े हुए हैं, और यमुना जो है वो दरवाजे पे आके हमें देखती है. सो उस सीन में ऐसा सीन था कि जब सोलोस की बारी आई तो सबके सोलो के टाइम पे ना यमुना हैड टू स्टैंड, बिल्कुल जो फ्रेम से आउट थी दूसरी तरफ थी, और यमुना को ना सबको मतलब बिकॉज शी इज ऑल्सो वेरी सीरियस एंड प्रोफेशनल एक्ट्रेस, तो वो कहती है कि मैं अपने खड़े होकर क्यूज दूंगी. तो वो सबके उन 10 लोगों के टाइम पे शी हैड टू लाइक स्टैंड देयर, और उसका कोई लाइन नहीं थी, शी जस्ट हैड टू स्टैंड देयर एंड क्राई. तो वो आके ना बार बार खड़े होकर ना अपने आंसू निकाल रही है एक एक करके 10 लोगों के लिए. फिर मेरी और बिलाल की बारी भी आई. अब एक उसमें कोई ऐसा इंसान था, जब आप 10 दफा ऐसा कर रहे होते तो कोई एक बारी ऐसी होती है जब फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऊपर कैमरा है तो पीछे 10 लोग खड़े हुए हैं, वो भी अपना क्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ने ना कोई सही शक्ल नहीं बनाई या कोई अपनी फोन में कुछ देख के कुछ करा था, तो यमुना स्टार्टेड वो थोड़ी सी ना वो नीचे होकर के ना उसके आंसू भी निकल रहे हैं और वो हंस भी रही है.
was feeling so bad कि यार मुझे किसी और को देख के हंसी आ गई और इन लोगों का सोलो है तो मतलब कोई बैड सीन ना हो जाए ना, तो she was laughing and I could notice that क्योंकि मेरा सोलो नहीं था। तो जब यमुना के सोलो की बारी आई ना, तो बिलाल को लगा कि अब यमुना का सोलो नहीं है शायद, या क्या है, क्योंकि रात काफी हो गई थी, एंड इट वाज बिलाल्स लास्ट डे एट द शूट। तो बिलाल वाज लाइक कि शायद हो गया, सारा सीन हो गया, पैकअप हो गया, तो बिलाल उठ के जाने लगे और मैं भी उठ के जाने लगी। तो हमें डायरेक्टर ने बोला कि यमुना को तो क्यूज दे दो। सो वी वर लाइक ओह शिट, वी डिड नॉट नो कि यमुना का काम रह गया, एक मिनट हम यमुना को क्यूज देते हैं ना। तो हम बैठे क्यूज देने के लिए, एंड यमुना इतनी क्यूट है, शी वाज लाइक नहीं नहीं दादा मैं इनके बगैर कर लूंगी, I can do it without them. And Bilal was like, नहीं हम देंगे. And I was like, नहीं यार मैं दूंगी, क्या हो गया? So she looked back and she's like, यार अगर तुम लोगों ने भी मुझे वैसे क्यूज दे दिए जैसे मैंने हंसते में दे दिया तो मेरा क्या होगा? And we all cracked up. We were like, यार बेचारी इसने इतने लोगों को खड़े होके प्रॉपर क्यूज दिए हैं, और जो एक दफा ये गलती से हंस गई है, she's actually feeling so bad about it. That was a very cute moment for us. I'm sure she is amazing. They both. यार How is the whole experience? How would you sum it up? तुम लोग की सारी उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है या अभी भी हो रही है? रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। मैं हमेशा ये बताती हूँ प्यार के सत्य के बारे में कि मैंने इस टाइम पे काम छोड़ा हुआ था जिस टाइम पे मुझे प्यार के सत्य ऑफर हुआ था, एंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड द कैरेक्टर तो मुझे बताया गया था कि ये शुरू के कुछ एपिसोड्स तक है सिर्फ, इट वाज अ स्पेशल प्रेजेंस, कुछ 3-4 एपिसोड्स की, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे मजे का लगा, सही था। मैंने जब सुना कि यमुना कर रही हैं तो बिलाल के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस था ही था, बिकॉज कुर्बान की वजह से, सो आई लव हिम एज अ को एक्टर and I have always loved working with him. तो मैंने कहा चलो सही है, बट जब मैंने यमुना का नाम सुना, it was always a wish, it was always a dream to work with Yumna because she's a brilliant actress, and working with her I have also found out that she's not just a brilliant actress, she's also an amazing human being. जितनी वो अच्छी एक्ट्रेस है ना, उससे वो ज्यादा अच्छी इंसान है। तो मैंने जब यमुना का सुना कि यमुना भी प्रोजेक्ट में, मैंने कहा यार मैंने काम छोड़ा हुआ है बाहर में, मैं कर रही हूँ प्रोजेक्ट बिकॉज यमुना इज इन इट एंड मैं तो काम करूंगी। So when I went on the set, और of course फारूक रिंद का प्रोजेक्ट फॉर हम टीवी एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो आगे की स्क्रिप्ट आई नहीं हुई थी, तो बाय लक कुछ इस तरह का अल्लाह ताला की तरफ से कि जब स्क्रिप्ट आगे आना शुरू हुई तो पता चला कि मेरा कैरेक्टर तो एंड तक है और चीजें एंड तक हैं और उस तरह से है। बट विद बिलाल तो हमेशा की तरह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी कि अच्छा जाएगा। लेकिन यमुना के साथ मेरे इतने सीन्स नहीं हुए, कोई 2-3 हुए, लेकिन जितने हुए उनमें मुझे एक चीज जो यमुना से सीखने को मिली कि यार आप नो मैटर आप जिंदगी में किस पोजीशन पे चले जाओ, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, यू हैव, अगर आप अपने उस चीज को भूल के कि आपका स्टेटस, आपका इस वक्त स्टेटस क्या है, अगर आप प्रोफेशनल ही रहो और आप सबको इक्वली ट्रीट करो एंड यू डोंट थिंक कि आप कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड हो इस वक्त सेट पे, तो सब लोग आपके अराउंड इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और एज ए टीम बहुत अच्छा काम निकल जाता है। So that is one thing I really liked about Yumna, and she's a very good friend now. खैर अब she's not just a co-actress, she's also a friend. तो मेरा बहुत मजे का एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दादा जो है हमारे डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से भी जो सीन्स बनाते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन है, जिस तरह से वो उस चीज को एलैबोरेट करते हैं, उस बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे होते, आपकी थॉट प्रोसेस भी उधर नहीं जा रहा होता, और वो चीजों को इतना अच्छे से आपको आके बताते हैं कि इस तरह से नहीं, इसको ऐसे कर लो, हम स्क्रिप्ट से थोड़ा सा साइड पे जाके इसको ऐसे कर लेते हैं, और वो इतने मजे की चीज निकल के आती है, और एंड पे जब वो एडिट पे जोड़ते भी हैं तो मेरा तो इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लवली लवली। एंड तो मेरा यही एक और सवाल था कि क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने यस किया इस स्क्रिप्ट को? So I guess I've already gotten my answer. It was of course the director and it was Yumna also. It was Bilal as my co-actor. Yeah. And it was the script. मैंने देखिए सारी चीजें एक साथ ही आप देख रहे होते हो। यमुना के साथ काम करना एक विश थी, तो चलो वो तो मैं उसको बहुत ज्यादा उस चीज को देख रही थी, लेकिन मैं हमेशा हर किसी को बोलती थी कि कुर्बान के बाद मुझे कभी कोई ऐसा को-एक्टर नहीं मिला जिसके साथ मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी हो जितनी मेरी बिलाल के साथ थी। बिलाल की टाइमिंग बहुत अच्छी है एज अ को-एक्टर, वो आपको क्यूज बिल्कुल वैसे देगा जैसे वो अपना सोलो देगा, तो वो चीज एक एक्टर के लिए, को-एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। अगर अगला इंसान अच्छा, अगला एक्टर अच्छी एक्टिंग आपके सामने कर रहा होगा तो आपका रिएक्शन भी उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही अलाइंड आएगा। So I was very happy that Bilal's opposite me. I was very happy that Yumna's a part of the project, and I was more than happy to know that Farooq Rind is directing it. So मेरे लिए it was a very good package.
Lovely, lovely. Okay, so okay, युष्मा, यहाँ बहुत सारे तुम्हें इंडिया से बहुत सारा लव आ रहा है, बहुत ज्यादा. अच्छा, आई एम सो सॉरी And बट मेरे पास कमेंट्स शो नहीं हो रहे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर oh, पा रही हूँ. अब okay, हाँ, okay, okay, अगर okay. Wait, how come? Okay, okay, I'll read them to you. अगर कुछ आ रहा है इस तरह का. Somebody saying we love your eyes. There lots of love from India, of course. There's lots and lots of love. Somebody saying कि आप अपना vlog बनाएं, अपने channel करें, YouTube channel. Start vlogging, and lots of hellos, highs, and hearts. You're so kind-hearted person. Thank you so much, ma'am. Thank you. Then love you. Thank you. So this, please give me your. Somebody's asking for your personal number. आप यशमा को प्लीज आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आई गेस, है ना, उसके थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से You're एक्टर्स को रख लेना चाहिए एक नंबर अलग से फॉर लाइक फॉलोअर्स, the यू नो 3 AM हमारे calls, no. सोशल, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग से नंबर होना चाहिए. मैं सोच रही हूँ इस चीज के बारे में अब. Yeah, so it's all stay safe, stay home. So your acting is amazing. Vlogged. Oh, okay, there's hello from Nasir Zuberi. Hello from Toronto, Canada. It's nice to see you. Get live on Insta. Okay, what are your hobbies nowadays? Somebody's asking. यार मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा शो कराने की कोशिश करूंगी कि मैं बहुत कोई बुक वॉर्म बनी हुई हूँ या मैं कोई बहुत ज्यादा चीजें कर रही हूँ. मैं सिर्फ सोती हूँ आजकल, और अगर ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ कर लेती हूँ तो वो ये है कि मैं रात को मैंने अपने टॉपिक्स रखे हुए हैं कि मुझे इस हफ्ते ये इस फलानी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है. मैं बताऊंगी नहीं अब कौन सी चीजें, थोड़ी सी क्रेजी चीजें हैं, लेकिन मैंने आई एम डिगिंग on information about a lot of things that I've always wanted to learn about. So I think because I'm a psychology student, तो मैं अपने psych के बहुत सारे चीजें थी, books थी ऐसी जो मैं online उनको जाके उनमें से references निकाल के read कर लेती हूँ. HFD एक assessment task है, वो मैं आजकल सीखने की कोशिश कर रही हूँ human figure drawing psychology में. So these are the things that I'm trying to do. कोई hobby as such नहीं है, खाना खा रही हूँ और सो रही हूँ. खाना खाने भाई से खिदमतें करा रही हूँ. हाँ, भाई को मैं बहुत तंग कर रही हूँ. मैंने अपने भाई को व्लॉग्स में भी यूटिलाइज किया है अभी रिसेंटली, जिसने व्लॉग की बात की थी, तो थोड़ी सी लेजी हुई भी हूँ इस वजह से चीजें टाइम पे लगा नहीं पा रही हूँ. मेरा एडिटर भी ऑफ कोर्स ही इज आल्सो इन क्वारंटीन. मैं खुद एडिटिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तो व्लॉग्स आएंगी मेरे भाई के साथ कि मैं उसके साथ अपना क्वारंटीन कैसे स्पेंड कर रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा जरूर. आई थिंक विद इन 2-3 days शुड बी अप. I know somebody's asking, आप वही क्वारंटीन का हमने पहले बता दिया. यशमा अपना कैसे टाइम गुजार रही हैं? Somebody's saying Parisha 31, please did you get me? Somebody's saying if you remember me. परीशे आई थिंक अगर ये वही परीशे है तो इन्होंने मेरा फैन क्लब बनाया हुआ है और ये बहुत एक्टिव है उसके ऊपर. एंड मैंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है अलग से अपने फैन क्लब्स का इंस्टा पे, अपने मतलब वो जो ग्रुपिंग होती है उसमें. और मैं कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम, you've got माशाल्लाह से, I think if I'm not wrong, more than 10 or 10-12 fan clubs. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यस. और मैंने उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है. और मुझे कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी बात होती है मुझे जो लगता है जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, आई एम नॉट इवन किडिंग हियर, मैं वो जाके बता देती हूँ, अपने किसी एक फैन क्लब को बता देती हूँ, या मैं अब जो मैंने नया ग्रुप बनाया है मैं उसमें भी मैसेज करना शुरू करूंगी. तो मुझे इतना मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों से मुझे इतना जो जिसे कहते हैं ना प्योर लव, किसी मकसद के बगैर, किसी रीजन के बगैर, कोई भी they've never met me, they've never talked to me on call, I haven't seen them face to face. कुछ मुझे वीडियो भेज देते हैं तो मैं उनको रिप्लाई में अपनी वीडियो भेज देती हूँ. इस तरह का बस हमारा कम्युनिकेशन है. इनको नहीं पता कि कभी इनको मुझसे कोई रिटर्न मिल भी सकता है या नहीं, बट स्टिल दे डू सो मच फॉर मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर द राइट पीपल टू गो टू विद माय एक्चुअल प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन लोगों की जो एडवाइस होगी ना वो बगैर कोई भी मुफाद या मकसद या नहीं होगा. हाँ हाँ. Totally. Yep. So there's lots of fans and loves, and they're all saying कि somebody from Netherlands, somebody lots from India, warm wishes.
सो इस तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. Bellagio by Sadaf. Sadaf is also online from Bellagio. अच्छा, सदफ Yeah. आंटी जो है वो मेरे लिए तो खैर शी इज लाइक अ मदर टू मी, बट इनका बड़ा अच्छा कराची में, और इनके पास मैं गई थी थ्रू माय सिस्टर फॉर माय सर्विसेज. इनसे पहले मैं कराची में कोई सैलून नहीं जाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं जब मैं आई थी बाहर से, तो मुझे अभी 3 साल 3.5 years हुए होंगे मैक्सिमम. तो व्हेन यू लिव अब्रॉड आपको वैसी आदत छूट जाती है सैलून्स जाने की या कोई भी ऐसी सर्विसेज करवाने की, और आप मैं अपनी आईब्रोज खुद बना लेती थी. ज्यादा से ज्यादा आईब्रोज होती हैं वो खुद बना लेती थी. बट एवर सिंस आई मेट सदफ आंटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी सारी चीजें हैं जिनका वो मेरे लिए मेरा ख्याल रख लेती हैं. मेरे बालों का, मेरी आई लैशेस का, मेरी स्किन का, मुझे खुद अपने बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता. एंड आई नो दैट आई एम इन द राइट हैंड्स बिकॉज शी ट्रीट्स मी लाइक हर ओन डॉटर. मतलब वो मुझे क्लाइंट की तरह तो लेती ही नहीं है. तो मेरे लिए तो एक थेरेपी सेशन भी होता है सदफ आंटी के पास जाना, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी, क्योंकि मैं उनको जाके सब बता देती हूँ. और जब मेरी सर्विसेज हो रही होती हैं तो साथ साथ मुझे मेरा एडवाइजिंग सेशन भी चल रहा होता है. और बाकी मतलब Sadaf aunty, I love you. I can't see your comments right now, but I miss you and I can't wait to come back Yeah, again. it's over here. Yeah, we had Sadaf को online हमने लिया था about last week, and I also go to Sadaf salon. I go over there, and she's amazing, Sadaf. Yeah, so Bellagio then you salon. must know the motherly vibes that Yes, you have. I know, I know, I know. I totally understand जो तुमने बोला है. I can totally relate it because I'm also mostly there, and yes, she is an amazing person. Chalo, we'll wrap it up now. We've almost done an hour. Really, okay. So I think as such अगर कोई और question होगा किसी का तो फिर वो मैं तुम्हें message कर दूँगी. But I think there are no questions. There's just lots of loves and hearts and appreciation for you, and all the best for all the projects. Of course, अभी तो हम प्यार के सदके ही देख रहे हैं. वो खत्म होगा. सो नेक्स्ट क्या है ये तो बताती जाओ. नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा आफ्टर यार? नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है, एक हमारा काफी टाइम से शूट हो रहा है जो प्यार के सदके से भी पहले, बट देन बीच में वो कुछ इश्यूज की वजह से